Hello and welcome back to our show. It's very nice to see you all. We had some problem with the timing. My volume. One second. So do let us know if you have any problem on watching us on YouTube and Instagram. क्या आवाज सही है या video सही है? But I think everything is fine, right? So yeah, so technically we weren't going to go live today, लेकिन luckily we have. नहीं तो कल shift करना पड़ता था. So what did you do this week? क्या है भाई? So today's topics are first is what is the first thing? I don't know. Can you put on the topics, please? So there are a few stuff, technical stuff है ज़्यादा, and a little bit on gaming as well. Science. And yeah, science बोल सकते हैं आप. So Science is what we call for. Walaikum assalam, a fun boy khairiyat. so today's topics are, we are talking about the launch of GeForce RTX 3060. Really good card. So we're gonna give a little touch on that. The second topic is about sound. So we'll talk about how sound is perceived by humans and the loudness levels and how it impacts your behavior and so forth till your personality. And also, इससे पहले हम लोग Spotify का बोल रहे थे, लेकिन we are also on Google Podcast right now, so do follow us over there. Because I think personally Google Podcast का player बेहतर है Spotify से, because you have more features to, on your side to enable options and all that stuff. So do follow us if you are on Google Podcast. So our show will be there as well, alongside with Instagram and YouTube. So yeah, so the last topic, as you just read, it's myth check. That is something what we break the myth, what people have in mind, is the famous incognito mode, which actually doesn't record. Incognito खोल के पूरा छिजोरा बना हो रहा. आप समझ रहे हैं कि आपको कोई नहीं देख रहा. पहले तो अल्लाह ताला देख रहा है. दूसरी चीज नहीं भाई, it's not about just हिचोरापन. It's not about अगर आप बैंकिंग के ऐप को जा रहे हो तो आप इनकॉग्निटो मोड खोलते हैं. अगर आप किसी हिस्ट्री में सेव ऐसा नहीं होता. क्या होना, बोला आपने? नहीं होता. तो हिस्ट्री में सेव नहीं होना and all that stuff, and we finally rely on incognito mode या फिर private mode on other browsers. But we are also going to talk about incognito life, क्योंकि we're gonna share some stuff के how to protect your data. Completely तो नहीं होता, लेकिन जैसा भी जब वो टॉपिक के बारे में आएगा तो शुरुआत के साथ the first NVIDIA one. 3060 recently launched, I think एक week back. It is much more cheaper than 3060 Ti. It's obviously much more cheaper than 3070 and 3080, 3090. तो बहुत आसमान को छू रहे prices. Yeah, mining के लिए यूज हो रहा, and 3060 थोड़ा specs दिए तो it has 10 GB video आवाज RAM. नहीं आ रही. is much more cheaper than 3060 Ti. Clear from me. Obviously much Yeah, I more. think it's clear for me. I think बंद your करके फिर खोलो. headphones or you can try refreshing Farun, please. And so yeah, I think it's working fine. So the 3060 is also the good news with NVIDIA cards is they are revamping or relaunching the 1060 for mining. So hopefully the NVIDIA cards will not be out of stock so much, because of which it's on very high prices. So the 3060, what is difference is, firstly, for me especially, is that the VRAM is not 8 GB, it's on what, 10 or 12, I think, right? Yeah. 12 GB. Oh, keep on talking because setting change करना है. Okay, so the VRAM is 12 GB RAM instead of 8, which is on Ti. I think it's 8 GB on 3080 also. 3060 Ti में भी 8 GB है. Yeah, so 8 GB है हर में, इसमें 12 है. तो that is a compensation for the cores are slower than those cards, but then there is more VRAM. So he can talk about where VRAM is used mostly. But yeah, that's a compensation. If you are looking for higher VRAM, I'd say go with 3060. If you're looking for faster cores, then obviously 3080 or 3070 to be. So you can see the price over here.
It's just 30,000, which is like a really good deal. और आजकल ऐसा हो गया ना इरफान के 30,000 हमारे बचपन में के बचपन में तो पहला ग्राफिक कार्ड में 4,500 रुपए का लिया था. हाँ क्या नाम था उसका MX 450 और इतना घटिया 4,500 रुपए तो अम्मा ऐसा था. और साथ लिए थे साथ मैं एक दुकान को गया था 4,500 I told him called him कह रहे 4,000 थैंक यू फॉर द hat. तो Love it. पहला कार्ड हम लोग लिए थे 4,500 में और वो स्कूल के ज़माने में इट वाज लाइक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. फिर बाद में अब आजकल फ़ोन इतने महंगे हो गए इफ़ यू जस्ट ट्राइंग टू बाय कंप्यूटर पेरिफेरल्स चाहे वो रैम रहने दो या कुछ भी रहने दो दे सीम टू बी सो मच चीपर इन कंपैरिजन टू द फोन्स एंड एवरी अदर गैजेट दीज डेज. बोलो खिजर भाई आप पिच कैसा उड़ा रहे लोग आप पैसे. भाई 1 दोनों लाख हाथ का. अरे कितना सस्ता है 1 लाख का है खाली. तो दोनों हाथों से भाई एक हाथ का ज़माना गया. भाई मजाक है 1 लाख रुपए. So anyway, let's get back to the topic, which is the RTX. So, as you can see, it just starts from 30,000 and it's a beautiful graphic card. RTX 20 series तो बहुत महंगे थे. 30 series काफ़ी सस्ते है and you get ray tracing and everything and 10 GB RAM. So if you see the cores over here, it has G6 memory है and if you see it on paper तो ऐसा दिखता है कि भाई 3060 Ti नहीं जूम नहीं हो रहा उसमें 3060 Ti वगैरह से अच्छा ये है लेकिन ऑब्वियसली कम सस्ता है प्लस Ti इज़ अ हायर मॉडल. तो फ़र्क ये है इसमें कि पहली चीज़ रैम का एंड एवरीवन हैज़ दिस इन माइंड कि हाँ भाई इतना रैम है तो अच्छा है वगैरह विच इज़ ट्रू. लेकिन साथ में रैम के कई मॉडल्स होते हैं. ओके तो रैम के मॉडल में इसमें जो यूज़ करे वो लोग बाहर का रैम है भाई. इसमें जो यूज़ करें इट इज़ नॉट एज फास्ट एज 30 अलग पूरे 30 सीरीज़ के जो दूसरे हैं तो इसीलिए इसका रैम बढ़ा दिए. तो इमेजिन कि एक जो डेटा आ रहा है एक कंटेनर में लोड हो रहा है और उसमें एक एक फ्लो हो रहा सिर्फ. लेकिन 3060 का जो रैम है इसमें एक पाइपलाइन है जिससे बॉटल नेक हो रहा. सो इट्स समथिंग लाइक दिस कंटेनर में सीधा नहीं गिर रहा. इट्स कमिंग थ्रू अ पाइप विच इज़ क्रिएटिंग अ बॉटल नेक जिसके वजह से स्लो हो जाता. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वहाँ पे पैसे बचा के दे हैव एडेड 10 GB ऑफ रैम विच इज़ अ गुड थिंग टू डू. क्योंकि पहले ज़माने में दे डिड सम छिछोरगी वो भी कम ये भी कम लेकिन वैसा नहीं है. 10 GB इज़ सफिशिएंट फॉर प्लेइंग गेम्स कीपिंग द AA हाई एंड एवरीथिंग. लेकिन वी रैम यूजुअली कहाँ काउंट होता गेम में. आप मेरे ख्याल से अगर आप 1080 के ज़्यादा पिक्सल में खेल रहे रेजोल्यूशन में खेल रहे तो जब काम में आता रैम इवन 4K भी खेल रहे तो ज़्यादा एडिटिंग में. लेकिन सब में ज़्यादा काम आता है रेंडरिंग में वीडियो एडिटिंग की है. फिर उसके आप 3D मॉडल्स कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें VRAM ज़्यादा यूज़ होता था. नाउ यू हैव टू बी लाइक स्मार्ट इनफ एंड थिंक कि भाई तुम क्यों ले रहे कार्ड. आप क्यों ले रहे कार्ड क्या I काम think के ले रहे 3060 is quite reasonable for the generation these games. या In this current generation, obviously at 1080 I'm speaking about, and also with RTX on, which takes a lot of impact on your frame rate. RTX, the new ray tracing technology. So I think 3060 अच्छा है. 3060 बहुत अच्छा है. And Unless obviously, and if you want the latest and the best, then 3090, which you have to wait for a year, I think. और वो 1,30,000 नहीं आराम से 2 लाख के करीब जाएगा. लेकिन that card is actually a replacement of Titan cards. If you know about Titan cards, they are like कंज्यूमर के लिए नहीं रहते लेकिन ये टाइम हम लोग कंज्यूमर के लेवल में लाके कॉलेंगे 3090 विच हैज़ लाइक 16 GB रैम. तो वो सब काम में इसको और है शायद. अब सिंस आई एम इन वीडियो ही इज़ इन वीडियो हम लोग ऐसा दे सकते हैं एग्जांपल के वो कार्ड्स इट्स मच मोर लाइक प्रोडक्शन हाउसेज जो कि 3-3 घंटे के मूवीज़ बना रहे एंड ऑल दैट स्टफ. तो दे स्टैक अप दोस कार्ड अपना एक सर्वर बनाते वहाँ से दूसरे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते तो दैट वर्क फ्लो. लेकिन अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे 3060 इज़ अमेजिंग डील. लेकिन For 30,000 it's really good. लेकिन 30,000 में मिलना या फिर कोई भी प्राइस में मिलना वो आपकी किस्मत है बिकॉज दैट इज़ लाइक. इसी के साथ next topic, which is very interesting, is about sound, how we perceive sound and loudness, how it impacts your behavior and your character. Now it's also related to, some people think that rock stars, even the movie, उसमें ऐसा दिखाते कि रॉक स्टार एकदम हॉट हेडेड रहते या उस जब देखो गुस्सा आ जा रहा ये हो जा रहा वो जा रहा.
well, stereotypical है, लेकिन there is some truth to it. Why? Because let's go on with sound. What is sound? Is, if I can, I don't need to show right now, but sound can be said into, can be divided into two parts. One is intensity, how loud it is, and the other one is how, what is the frequency of it. तो bass है, treble है, mid tone, mid level है, तो ये पूरे उसकी frequency है. तो ये दो चीज़ों में डिवाइड हो रहा साउंड, ठीक है. लेकिन अभी ये डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे. दिस इज अ डायग्राम ऑफ हाउ ह्यूमंस परसीव लाउडनेस. ओके, तो ये डेसिबल्स में है. नहीं, सो द वर्टिकल थिंग ऑन द लेफ्ट is how loud it is in decibel, sound pressure basically dB. तो जो ऑडियोमीटर्स आप ऐसा हिलते हुए कहीं देखते हो dB रहता मोस्टली. And the horizontal equalizers, and the horizontal line is the frequency. So the bass would be somewhere here. Hello Atiq, bye. So the bass would be somewhere here, and the treble, our voices are here. This dip that you see after 80 is our voices, human voice, and this is the treble. So anything which is sharp, as in anything like cymbals, claps, horns, all of this comes on the right side of the frequency, which is higher, and anything that is bassy, like the rumble of an engine or something like that, is on the left side. The bass, right? Gum 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 जो होता है वो सब left side है. तो loudness आप अगर यहाँ पे ग्राफ देखें, okay, so what it shows is that the dips that you see after these numbers in the middle, these dips are where the human voice lies, right? तो अपन इवॉल्व ऐसा हुए कि इंसानों की आवाज़ सुनना सब में ज़्यादा ज़रूरी है अपने को. ओके, तो अगर आप यहाँ देखें, का मतलब अडेप्ट हो के चेंज हो जा सकता है इंसान का. नहीं, इतने सालों से इवॉल्व हो रहे ना अपन. तो अभी यहाँ पे आप देखें, जैसा बेस अगर आप देख रहे लेफ्ट पे जो हिस्सा है, तो गुम गुम वो सब ऊपर जा रहा. मतलब अगर इन्हें 130 डेसिबल्स पे है बेस, ये ग्राफ का मतलब, चलो फर्स्ट लाइन लो, 130 डेसिबल पे बेस है, तो अपने को सिर्फ 100 सुने आ रहा. तो अगर आपको 80 डेसिबल का सुनना है तो आप बेस 120 डेसिबल्स करें तो आपको 80 के बराबर दिखता. दिस इज हाउ अपन परसीव कर रहे हैं, ठीक है. अब इसका एग्जाम्पल कैसा दे सकते, तो इवॉल्व हुए मतलब अपने लिए सब में ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ह्यूमन, दूसरा आदमी बात कर रहा था वो सुनना. तो ये जो बीच में आपको डिप दिख रहा ना, वो डिप इसलिए है क्योंकि अपन वैसे इवॉल्व है, तो अपने को सब में ज़्यादा सुने आती आवाज़ तो वो फ्रीक्वेंसी में जहाँ पे ह्यूमन की आवाज़ रहती, वो अबाउट 2000 किलोहर्ट्ज़ की तरफ. तो होता ये एग्जाम्पल ये बोल सकते हैं कि अब आप गाड़ी में बैठ रहे हैं, आप गाड़ी में जा रहे हैं, तो जो गाड़ी के इंजन का रंबल है, ये पूरा बेस साइड है, तो अपने को उससे उतना इरिटेशन होता नहीं, बैठ के कितने घंटे ट्रैवल. लेकिन जो हॉर्न की आवाज़ है वो करती है 2 किलोहर्ट्ज़, 2000 किलोहर्ट्ज़ की तरफ. अपने पास तो टेप लगा के इग्निशन ऑन करते बस ना, घर से निकले जब घर से वापस आ जाओ. हाँ, तो खाली रोड है तो भी टेन 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 टेन. हाँ, तो जो अगर आप सेम ट्रैफिक आपको समझो दुबई में भी मिल रही, लेकिन हर कोई हॉर्न नहीं मारते रह रहा. दुनिया भर में जितने अच्छे कंट्रीज है, एग्जैक्टली, तो आपको ट्रैफिक मिलने वाली, हमारी भी अच्छी थी एक ज़माने में, लेकिन आपको उतना इरिटेशन नहीं होता जितना इंडिया में होता. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप वहाँ पे क्या खामोश बैठे हुए, आपकी इंजन की आवाज़ आ रही, दूसरे की इंजन की आवाज़ आ रही, हो रहा, तो उसमें उतना आपको इरिटेशन नहीं होता क्योंकि आप उसको लाउडनेस में बहुत कम परसीव करते. लेकिन इंडिया में क्या हो रहा, टी टी डा डो 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 चलते जा रहा. वो भी जबरदस्त लॉरियों के मेरे को सब में अच्छे दिखते हैं. हाँ, तो बहुत बहुत ज्यादा आपको कैसे रहते, तो उसके वजह से आपको बहुत, हाँ, ASMR हो जाता है भाई ट्रैफिक का. तो इसलिए आपको वो बहुत ज्यादा इरिटेशन होता, क्योंकि जो लाउडनेस परसीव करता है, ये तो मैं आपको खाली लेवल्स का दिखा रहा था डायग्राम में, टाइम पे भी है. ओके, तो मैं पॉइंट पे आऊँगा अभी, मैं कहीं को समझा रहा हूँ. तो टाइम यानी एक चीज़ को आप एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक हुए, ठीक है. तो अब आप एक सेकंड के लिए अपने आप को एक ओशन के सामने इमेजिन करो, ठीक है. एक बीच पे है, आप अकेले चल रहा है, ठीक है. अब आपकी दुल्हन बाजू बैठी हुई है, उन्हें बात कर रही, क्या मज़ा है ओशन का. सुनो, हाँ,
बोलो। चलो भैया ना, तो दुल्हन है आप, दुल्हन आप है, तो आपका नहीं, मियाँ अच्छा, बाजू बैठा हुआ है भाई, और आपके मियाँ की बहुत अच्छी आवाज़ है, और मियाँ की कदर कर। तो दुल्हन की। वेव्स की आवाज़ आ रही है, ठीक है, और उन्हें एक नॉर्मल टोन में बात कर रहा, अरे जब से मैं तुम्हारे से मिला, एक मेरे रोमांटिक मूड समझो। हाँ, तो उन्हें एक बेसिकली उन्हें एक टोनल रेंज में जा रहा, ठीक है, तो आपको बहुत पीसफुल दिखता है कि बोले तो आप ओशन की भी आवाज, तो environment भाई, नहीं हो basically। रही, समझ रही, समझ रहे ना, हॉर्न नहीं बज रहा पीछे। हाँ, एक कांस्टेंट लेवल पे चल रहा, वो चल रहा, क्या यहाँ इनकी आवाज, दस आवाज थी, फिर से निकाल। हाँ, यहाँ इनकी आवाज एक कांस्टेंट लेवल पे चल रही, अरे देखो जब से तुम मेरी जिंदगी में आए। अब एकदम इमेजिन करो, उन्हें ऐसा बात कर, अरे जब से तुम मेरी जिंदगी में आए, वैसे तो है लोग मालूम ना, तो कैसा हो जाता एकदम, क्योंकि उसका टोनल रेंज इधर उधर हिल रहा ना, तो थोड़ा वो मूड से निकल जाते। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर आप एक चीज़ बहुत देर तक सुन रहे हैं, आप कॉन्स्टेंटली सुन रहे हैं ना, तो आपके दिमाग में, यानी आपके आँख कान जो सिग्नल्स भेज रहे हैं आपके दिमाग को, उस पर स्ट्रेस नहीं लगता, ठीक है। तो आप एक बहुत जोर की आवाज़ भी बहुत देर तक सुने अगर, तो आपको वो बहुत कम दिखती, ओके, ठीक है। लेकिन हो रहा क्या, दिमाग आपका प्रोसेस तो कर रहा। तो अगर आप हेडफोन्स, यहाँ पे पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं, अगर आप हेडफोन्स लगाते, आपके फ़ोन में एक लिमिट रहता, कभी कितने ही फोन्स में इसके ऊपर गए तो आपको you get a warning dialog box. That is because of all these standards. So if they set these standards, they are backed up by science. It is not recommended to go above it, because आप अगर लो वॉल्यूम पे भी सुन रहे हैं ना, तो आप ओवर टाइम अडेप्ट कर लेते हैं आपके काना कि ये एक सेट वॉल्यूम है। अब आप यहाँ पे जैसा देख रहे हैं ना, ये ग्राफ में आप देखें, तो आपको एक लेवल ये तो बहुत ऊपर से आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे एक एवरेज लेवल दिख रहा ना, 60 के करीब जब आ रहा, डिप्स है ऊपर नीचे, लेकिन एक एवरेज चल रहा। तो अगर आप वो एवरेज पे रखे, तो आपको वहाँ से परसीव करते हैं, अब वो आपका एवरेज लेवल है, अब वहाँ से बेस क्या है, ट्रेबल क्या है, आप बहुत इजीली रिकग्नाइज कर सकते। तो आप लोगों को ऐसा दिखता, ये कमेंट बहुत एक क्या बोलना, टाइम के साथ ख़त्म हो जाता क्या, वो रोमांटिक पना टाइम के साथ ख़त्म हो जाता, वेव कितनी भी सेटल हो जाओ दिमाग में, लेकिन अच्छा जान दो भाई, आप अकेले बैठे हुए, अल्लाह ताला को याद कर रहे हैं आप वहाँ बैठ के, ठीक है, खुदरत आप देख रहे हैं, अल्लाह ताला क्या बनाए भाई, तो भी एक रिलैक्सिंग है। लेकिन एकदम सोचो वहाँ पे पीछे हॉर्न मार रहा कोई, लेकिन एक चीज़ आई है इरफान दिमाग में, इन्होंने जैसा बोले ना, तो उन्हें बोल रहे कि माहौल भी सेट कर लिया है, बीवी को ऐसा रोमांटिक बात भी कर लिया, तो एक टाइम नहीं, एक टाइम तो क्या बीवी चेंज हो गई, नहीं मतलब आप सी देख रहे हैं आप, हवा, अच्छा नहीं, हाँ, भी ऐड नहीं, हाँ, लेकिन इनका बोलने का मतलब है कि टाइम के बाद चले आता। तो अब ये लेवल जो भी दिखा रहे हैं आप, इसमें मियाँ और बीवी का भी है क्या जिक्र, कि एक टाइम के बाद उससे दम हो जाते, या फिर वो साइंटिफिकली दिमाग का है? हाँ, तो वो पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं। अच्छा, ओके, हाँ, तो ये है, गौर से सुनिए, कमेंट जो भी करे, कि आप हेडफोन्स लगा रहे हैं, आपको वो वॉल्यूम कम दिखती जो फ़ोन सेट कर रहा है, मतलब इससे ऊपर न को जाओ, जो दिन दे रहा ना रेंज, आपको दिखता बहुत कम है, आप बढ़ाते रहते, लेकिन वो मत करिए, वो आपके इट कैन कॉज परमानेंट डैमेज टू योर ईयर्स, यू कैन बिकम डेफ। तो उससे नीचे रखिए, इनफैक्ट जो लेवल है उससे भी नीचे रखना चाहिए, और आपको दिखता वो लो वॉल्यूम है, लेकिन आप एक अपने आप को फोर्स करके एक हफ्ता आप वो वॉल्यूम पे सुनो, तो आपके गाना अडेप्ट हो जाते कि ये मेरा नेचुरल लेवल है, उसके बाद आपको हर गाना सेम दिखता। आप फिर जब वापस वो लेवल पे जाएंगे ना, आप बोलेंगे इतना जोर का क्यों है। तो ये होता कि अब आप हमेशा वो लेवल पे अगर सुन रहे हैं, आप अपना एवरेज ही ऊपर रख रहे हैं, तो आपको दिख रहा वो हाँ ऐसा ऐसा है। लेकिन आप सोचो यहाँ पे ग्राफ अगर जो दिखा रहे अपन 80 लेवल का अगर आप सुन रहे, अब यहाँ पे नॉर्मल लेवल क्या है देखो, 40 ब्लू वाला नॉर्मल है, ठीक है। तो आप 40 लेवल पे नॉर्मल सुन रहे, तो आप बेस के डेसिबल्स देखो 90 टच कर रहे हैं। 90 डेसिबल्स इज वेरी लाउड, राइट। सो अगर आप बढ़ाते जा रहे हैं अपना एवरेज, आप 80 तक कर दिए एवरेज 100 तक, तो आपके बेस जा रहे हैं 130, इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू अ गन शॉट। तो आप वो सुनते जा रहे हैं, तो आपका दिमाग प्रोसेस करते रह रहा ना उतना, तो वो आपके बिहेवियर में दिखता। ओके, पहले तो आप बहरे होते रहते, बाहर के आपको कोई लोहा बात करने तो सुने नहीं आता, क्या हाँ करते रहते, क्यों, हेडफोन्स है हमेशा, तो आप बहरे होते जा रहे हैं पहले।
क्योंकि आपका एवरेज लेवल आप गानों से उतना ऊपर कर दिए, ठीक है। दूसरी चीज ये हो रही, कुछ सुने नहीं आ रहा, नीचे से बाबा मम्मी पुकार रहे, बेटे इधर आओ, भाई लगा लेके चिक चल रहा, फिर वो एक हो रहा, फिर स्क्रीन देख देख के सामने चीज क्या रखी है, अंधे हो जा रहे हैं। अंधे हो जा रहे। तो भाई वो तो अलग चीज़ है, लेकिन मैं बोलने का मतलब ये है कि आप वो बहरे होते जा रहे हैं, प्लस आपके कैरेक्टर में आ जा रहा हो। तो कैसा आ रहा, क्योंकि आपका बिहेवियर आ रहा, तो आपका बिहेवियर, आप इरिटेटेड रहते हैं, अब आपको नहीं दिखता कहीं को है, आप समझ में नहीं आता इरिटेटेड क्यों है, लेकिन इट्स जस्ट लाइक द सेम इरिटेशन दैट यू गो थ्रू व्हेन यू कम थ्रू अ ह्यूज ट्रैफिक। आप वो सुन रहे हैं, उसके बाद घर को आए, घर में आते की बीवी बोले आप जल्दी आते हैं, बोले थे ये कर, बोल के किराक हो जाता ना मियाँ मोस्ट केसेस में। इसलिए होता क्योंकि वही लेवल पे आप हॉर्न सुने, वही लेवल पे उन्हें बात करती, उन्हें क्या कोई भी आपके बाबा भी बात करे तो वही लेवल पे करते। तो आपको वो इतना प्रोसेस हो रहा था दिमाग में, आप एक बिजी दिन में से आए तो कैसे इरिटेटेड रहते वैसे। तो अब आप गाने सुन रहे हैं, आप क्या करने सुन रहे हैं, मूड अच्छा करने, लेकिन आप मूड खराब कर ले रहे हैं, आपका बिहेवियर खराब होता। और आप अगर वो कॉन्स्टेंटली 1 दिन करे, 2 दिन करे, 3 दिन करते जा रहे हैं आप, तो वो आपके पर्सनालिटी में आ जाता। कोई भी पूछेगा उन्हें कैसा, अरे भाई जब देखो चिड़ा हुआ रहता, उसकी वजह क्या है, आप हाई वॉल्यूम पे गाने सुन रहे हैं। That's how it impacts. So this is how rock stars are always irritated, mostly because they are listening to very loud volumes. If they are not controlling their environment, they are listening to very high volumes. Especially वो जो गिटार का एम्प लगाते हैं अपनी तरफ फेस अगर करे, बहुत जोर की रहती है, वो सुन रहे तो उन्हें वो अच्छे मूड में नहीं रहता भाई। उसको कुछ भी बोलते कि उन्हें खिराक हो जाता, फिरक हो जाता, तो उसके कैरेक्टर में आ गया, उसकी पर्सनालिटी बन जाती हो वैसे। या दिस इज वेल, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। और ऐसे कई चीज़ें हैं, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट हियरिंग। आपकी हर एक हरकत, हर एक चाल आपके पर्सनालिटी में इंडल्ज हो जाती, जिसके वजह से आप अच्छे या बुरे जो भी हो, नेशनल स्टफ अबाउट ह्यूमन। लेकिन उसमें एक अच्छी बात यह है, इससे कई चीज़ें मैं सोच रहा था तुम बोलते वक्त, कि एक ये है कि नॉइज कैंसलेशन क्या है। अगेन, if you go into this graph and talk about noise cancellation, does the opposite of it. आपकी अगर समझो कि एक वेवलेंथ है जो आ रहा 100 से जा रहा 80 पे, 120 से जा रहा 80 पे, ओके। तो what noise cancellation does, और noise cancellation अगर आप headphones यूज करें, कुछ भी करें, तो एक माइक रहता, because it intakes that noise of that level and inverts that and compresses that, so कि आप नहीं सुनना वो। So I hope you guys get it. I mean, सही है ना, कैंसिल कर रहे वो सिग्नल को। So that is what noise cancellation headphones do. तो But you're still listening to it, लेकिन आप उस पे नॉइज कैंसिलेशन माइक से लेके उसके आउटपुट ये कंप्रेस कर दे रहा, तो आपको सुने नहीं आ रहा, तो आप बोल रहे हैं हाँ भाई बाहर की दुनिया कट गई, विच इज ट्रू, लेकिन आ रही द वेव्स आर फाइटिंग इनसाइड ईच अदर, जिसके वजह से आपको सुने नहीं आ रहा। और नॉइज कैंसिलेशन, पहली चीज़ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो भी बोल रहे हैं, हम लोग रिसर्च पेपर्स नहीं दिखा रहे, क्योंकि ऑब्वियसली इट विल गेट वेरी लॉन्ग, but this is something you can research. Whatever we tell in this show, you can research it and do your own research and share with us. So you can search loudness perceivable of humans, or how humans perceive sound, loudness. Google it. You'll get research papers. You'll get everything from universities to medical institutes, how it works, right? So what he's telling about noise cancelling is also कि आप सुन रहे, आप perceive नहीं कर सक रहे हो, ठीक है, लेकिन आपका दिमाग it still tries to process that. It still is trying to process that, but it cannot listen to it because of the cancel of signals, right? तो आप noise cancellation में भी खाली बैठे हुए रहे, ऐसा कुछ नहीं लगा लेके, तो भी आप इरिटेट होते, क्योंकि आपका दिमाग सब बहुत कोशिश कर रहा सुनने की, लेकिन उन्हें नहीं सुन सक रहा, क्योंकि आपके काना वो परसीव नहीं कर सक रहे। तो प्रेशर तो सेम पॉइंट, हाँ, तो प्रेशर तो वैसे ही पड़ रहा, उतना ही डेसिबल्स कैंसिल हो रहे। तो आप खाली नॉइज कैंसिलेशन भी लगा के बैठे, तो आप कुछ अच्छी चीज़ नहीं कर रहे अपने दिमाग के लिए। अपने दिमाग को सुकून दइए, ट्राई टू लिसन टू म्यूजिक ऑन स्पीकर्स इफ यू कैन, ट्राई टू गेट open headphones if you can, which are open design headphones. They are called open back headphones. If you can get those, they are very good. ऐसा कुछ suppress नहीं होते, खुले रहते, सब आवाज आती, लेकिन headphone की जैसे। I love noise cancellation. Also earbuds are very
आई लव ईयरबड्स, लेकिन अच्छी चीज नहीं है। आप अच्छी चीज नहीं ऑब्वियसली है, एक आध लेकिन- वक्त सुन लिए ठीक है, लेकिन दिन रात से छोड़ो भाई। देखो भाई, पहली चीज ब्लूटूथ अगर आप हेडसेट लगाए हुए हैं तो उसका मतलब ये है कि आपका हाथ बिजी है, आप गाड़ी चला रहे हैं या फिर कुछ काम कर रहे हैं तो फोन पकड़ नहीं सक रहे। ओके, बहुत कन्वीनियंट है। आई यूज दैट। मैं भी करता हूँ। लेकिन दावतों में गए, कान में एक लटका हुआ है डंडा, ये चीज आपके लिए अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है। पहले चीज तो हवा जाना वाकई अच्छी है, हेल्थ वाइज अच्छी नहीं और है। एक about नहीं मेरे को खत्म में बताओ, हवा जाना अच्छी नहीं है। और दूसरी चीज, आप नमूने दिखते। पहली चीज तो ये आपके मुंह पे कोई नहीं बोलता, लेकिन दैट इज हिलेरियस एंड स्टूपिड। ये मैं बोलना चाह रहा था ईयरबड्स के बारे में कि बोस का जो डिज़ाइन है, मेरे को बोस पे तो नहीं करा, लेकिन मेरे को उसका डिज़ाइन इसलिए पसंद कि उसका जो बड है वो आपके कान के बाहर ही रहता, कान में ऐसा ढस जाता नहीं अंदर। तो ऐसा लॉक होके ये कान का होल है ना, तो यहाँ पे बैठता हूँ, तो आपका कान खुला ही रहता, आपको बाहर के भी पूरे आवाज़ आते रहते। वो नहीं होना बल्कि ढसने वाले या नॉइस कैंसिलेशन कर लेते, लेकिन वो बहुत आपके लिए हार्मफुल है इन द लॉन्ग रन। तो आप ऐसे कोई हेडफोन्स देखिए जो ऐसा लॉक होते ऊपर और आपके होल के बाहर ही रहते, या वो जो पुराने स्टाइल के हेडफोन्स रहते ना, जो पूरा ऐसा बटन के जैसा बैठता था, वो भी बहुत अच्छे रहते, क्योंकि आपको स्टिल हवा रहती है और आप बंद नहीं कर रहे उसका हॉल। और जितना हो सके आपका मिनिमल करिए यूजेज हेडफोन का, इतना ज़्यादा मत सुनिए दिन रात, स्पेशली 4 से तो घंटे से ज़्यादा ऊपर तो सुनना ही नहीं चाहिए। 6 घंटे ऐसा सुन रहे हैं इज़ वेरी हार्मफुल फॉर यू। खैर, बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, आई वांट टू क्लोज दिस होल थिंग कि मेबैक वालों की जो नई मॉडल है ले रहे हैं, हाँ ले रहे हैं, इंशाल्लाह लेंगे। तो असल में ड्राइवर ढूंढ रहा हूँ, मालूम पीनट्स कोई शॉफर ऐसा मिला चलाने के खातिर तो जाके लूंगा। क्यों बोले तो आजकल रोड पे पढ़ा लिखा आदमी सही नहीं चला रहा, एक बेचारे ड्राइवर को हायर करूँ, तो ड्राइवर ढूंढ रहा कोई है तो बोलो, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको भी मेबैक पे बिठा के फिर आऊँगा। खैर, तो ये बोलने का ये मतलब था कि मेबैक में, नई मेबैक में 8 नॉइस कैंसिलेशन माइक्स लगाए, क्योंकि गाड़ी के अंदर गाड़ी के टायर की आवाज़, सस्पेंशन की आवाज़, सब चीज़ बंद करने। अगेन a little information about how people are using noise cancellation in the cars as well, not just on headphones या stuff, which is good, लेकिन एक हद तक। और बोलिए लास्ट टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक है भाई, यकीन मानो। क्या है? सबसे अपन 2 थे। बोलो। लास्ट टॉपिक मिथ चेक है, as you can see, जो बोलो भाई, इनविंसिबिलिटी मोड, इनकॉग्निटो, तो इनकॉग्निटो मोड जो कि फेमस है, प्राइवेट ब्राउजिंग एंड हम लोग ऐसा कह रहे हैं तो हिस्ट्री में नहीं आता, आखिर में हिस्ट्री में नहीं आता आपके पर्सनल साइट, लेकिन आपका इंटरनेट प्रोवाइडर पूरा चिट्टा देख सकता है भाई क्या देख रहे हैं। और इंटरनेट प्रोवाइडर कोई आपका नेबर वेबर नहीं है भाई, उन्हें गवर्नमेंट से मिला हुआ है, तो ऑल दैट स्टफ कम्स इन, तो यू आर नॉट सिक्योर एट ऑल। हम लोग कब से की बोलते हैं, पहले एपिसोड से बोल रहे हैं कि वंस यू कनेक्ट इनकॉग्निटो मोड में बोलूं, सही बोलूं किसके लिए है? अब आपके घर में आपका कंप्यूटर कोई दूसरा भी यूज करता और आपको छिचोरी चीजें देखना है, छिचोरी की को भाई कुछ मैं कुछ तो देख इस रहा हूँ बात मैं करूंगा। किसी को ओके चलो छिचोरी चीजें देखना है आप इनकॉग्निटो खोल के देख लिए, तो जो दूसरा आदमी आके देखेगा उसको नहीं मैं भी अगर जबरदस्त देख रहा हैक कर रहा दिमाग में तो हाँ, देख सकता, लेकिन मोस्टली जनरल केसेस में उन्हें नहीं देखता, तो आप खाली उससे बच सकते। लेकिन आप अगर ऐसा सोचेंगे मैं इनकॉग्निटो खोल के बम्बाट मजे करूंगा, वैसा नहीं कर सकते, गवर्नमेंट देखती और आपका इंटरनेट प्रोवाइडर जो भी दे रहा उन्हें देखता, एक्ट है जो भी, एक्साइटल है और क्या है जो भी एयरटेल है, इन्ना देख सकते। अगर आप कुछ उसमें गन्स ढूंढ रहे हैं, ड्रग्स ढूंढ रहे हैं, दीवानी चीज़ें ढूंढ रहे हैं, तो वो भी रिपोर्ट भी कर सकते हैं, उन लोगों को फ्लैग भी होता कि इन्हों ये देख रहे हैं, बल्कि फ्लैग होता। फिर उसके बाद उसके पास राइट भी है कि उन्हें गवर्नमेंट या ऑफिशियल को किसी को इन्फॉर्म करना कि भाई यहाँ पे उंगली दिख रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल को आप पे शक है, तो वो लोग भी आपका पूरा डेटा निकाल के देख सकते हैं। तो मैं चरस बेचूंगा खरीदूंगा बोले इनकॉग्निटो पे, तो इम्पॉसिबल, आपकी लाइफ इनकॉग्निटो हो जाती जेल के पीछे। यस, हाँ वो एक अच्छी जगह। एनीवे तो अब सवाल उठा ये कि भाई मेरे को छिचोरे चीज़ें देखना है,
ना मेरा इंटरनेट प्रोवाइडर देखना, ना गवर्नमेंट देखना, ना मेरा घर वाला देखना, कोई नहीं देखना, लेकिन मैं सिर्फ वो छिचोरिजना देख के बाहर हीरो शरीफ शहजादा शक्कर में पादा रहूंगा और घर में छिचोरे कामा करूंगा। तो कैसा करना? खैर ये जो सोल्यूशन दे रहे हैं इट्स नॉट फॉर देम, वो लोगों को अक्ल भी नहीं है, तो प्लीज आप अच्छे इंसान बन जाओ। आई मीन जैसे है वैसे। अरे मिर्चा आया देखो, आइसक्रीम बेचने वाला इन्हें भी यही लेवल पे बोला आप भी। हाँ इन्हें भी कौन से लेवल में बोला? आई थिंक इन्हें ये लेवल में बोला कुछ बेचारा। एनीवे तो क्या बोल रहा था? हाँ तो VPN इज वन गुड ऑप्शन, लेकिन VPN भी सिर्फ क्या होता बोलो VPN में? VPN में देखो भाई, पहले चीज अगर आपका IP एड्रेस, पहले आप सर्विस प्रोवाइडर विदाउट VPN है तो IP एड्रेस आपका देख के आपको ट्रैक कर सकते हैं। देन उसके बाद IP एड्रेस से आपके एक मशीन को कनेक्टेड रहता है जो कि आपका MAC एड्रेस देता, और MAC एड्रेस इज नॉट जस्ट ऑन PCs और लैपटॉप्स, आपका फोन जो भी चीज इंटरनेट नेटवर्क को कनेक्ट होती है उसका एक यूनिक MAC एड्रेस रहता है। So that is how they can reach to your PC. What VPN does is it replicates your IP to somewhere दूसरे कंट्री का या दूसरे जगह का बेसिकली। उस पे आपका इंटरनेट तो कनेक्टेड है एक जगह, लेकिन आप VPN डाले तो क्या होता, सीधा आने के बजाय उन्हें तो फर्ज करो शेर यार भाई छिचोरी जान देख रहे हैं बैठ फर्ज करिए सिर्फ, तो क्या होता है? मैं इधर ट्रैक कर रहा हूँ, सुनो एक लेमन टर्म्स में समझा। ओके मैं इधर ट्रैक कर रहा हूँ, अब भाई इनकॉग्निटो कुछ नहीं खोले, किसी से नहीं डरते, उन्होंने है छिचोरा तो हूँ बोल रहे हो, रहे तो वैसे रहो भैया। हाँ तो उन्होंने देख रहे हैं। अब मैं बोला अरे कहाँ देख रहा भाई, बल्कि मैं अगर ट्रैक करा तो IP एड्रेस आता, IP एड्रेस में हर चीज़ रहता, मतलब रहते तो नंबर्स, लेकिन उससे सब मालूम कर सकते कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। देखे तो बाजू के रूम में बैठे हुए, हाँ ये तो मेरे घर में से देख रहा हूँ। खैर तो ऐसा पूरा मालूम हो जाता, हैदराबाद में है, इंडिया में ये जगह, ये स्ट्रीट में, यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं, मालूम हो जाता। VPN में ये होता भाई देख रहे हैं भाई बहुत शरीफ है, अरे कैसे खैरियत भाई है, घर को जाके हंगामा छिचोरापना चल रहा। तो इस सूरत में ये होता कि भाई VPN भी डाल लिए, भाई इतने होशियार है, VPN डाल लिए। अब मैं बोला क्या कर रहा शेर यार, देखेंगे, बल्कि मैं देखा, मैं ट्रैक ही नहीं कर सकता, मेरे को क्या दिखता मालूम, कुछ तो भी ब्राज़ील में कोई है या जर्मनी में कोई है, डिपेंडिंग ऑन आप क्या कंट्री। हाँ जापान में कोई बैठ के देख रहा, ये दिखता। जापान में वो भी ऐसा परफेक्ट आता, जापान में ये स्ट्रीट में ये लोग हैं, जैसा नॉर्मल एड्रेस आपका भाई, लेकिन आपका नहीं आता, मास्क होके किसी और का आता। अब अगर मैं उसमें से कट के शेरियार तक आना बोले तो मैं बहुत बड़ा हैकर रहना पड़ता, और अच्छी खासी एथिकल हैकिंग बोलते हैं उसको, वैसे मतलब ड्रग्स के लिए भी करते लोग, तो उसके लिए बहुत अच्छी हैकिंग आना पड़ता। तो जब देख सकते इरफान भाई द अंग्रेज मूवी का रिव्यू बहुत पुरानी हो गई बड़े भाई, वो क्या रिव्यू? तो VPN से ये होता कि ऐसा मास्क होता आपका एड्रेस, लेकिन VPN इज अ गुड सोल्यूशन, लेकिन एक लेयर है। लेकिन आप ये छोरे चीजों के लिए ना को करो, आप किसके लिए करो, आपको अपने बैंक स्टेटमेंट्स कुछ देख ले रहे हैं आप, या फिर समथिंग भाई कुछ आप प्लान कर रहे हैं जो आप नहीं दिखाना चाह रहे हैं, या समथिंग लाइक दैट। इसलिए VPN सर्विस पेड रहते हैं। पेड वाले क्या रहते हैं, दे गिव योर यूनिक IP एड्रेस। जो पेड अनपेड रहते हैं पहले चीज तो रिलायबल बिल्कुल नहीं है, आपका MAC एड्रेस फिर भी दिखता। तो जो पेड है दे आर गुड, some are higher paid, they're even good। अब जैसा कि Netflix अगर आप यूज़ करें VPN पे तो आपको US लाइब्रेरी या फिर क्या बोलते हैं UK लाइब्रेरी, जहाँ का भी आप VPN लिया वहाँ के आते तो you can use that। अगर आपको शोज़ यहाँ पर नहीं मिल रहा है Netflix तो you can do that as well, you know it's a good thing। लेकिन हर चीज़ के और एक VPN का यूज़ है बैड साइड। हाँ, और एक VPN का ये यूज़ ये भी है कि आप डायरेक्टली नेटवर्क पे जाना चाह रहे हैं, बहुत टेक्निकल चीज़ है, लेकिन डायरेक्टली नेटवर्क पे अब राउटर के पीछे रहते हुए आप एक डायरेक्टली नेटवर्क का सामना करना चाह रहे हैं, आइदर फॉर गेमिंग or you have some streaming service or something like sharing remotely with your team। yes, something like that, then VPN is also used in those cases। तो सिर्फ छिचोरापना उसका साइड इफेक्ट। कौन पकड़ेगा इरफान भाई? अरे जीते लोग छिचोरा बोलना, पहले ये बोलते भाई VPN डाल लिया, मैं क्या देख रहा हूँ मालूम साइट, लेकिन सब में खासियत अच्छी चीज क्या है, कई को करते मालूम, गवर्नमेंट ब्लॉक करी ना भाई साइट आगे की, तो नहीं खुल रहे, VPN डाल के खोलते। तो VPN हिट है अभी इंडिया में। इंडिया में क्या, पूरे वो मिडिल ईस्ट में जो ब्लॉक है वहाँ पे भी हिट है। नहीं इंडिया की बात करो, क्यों? तो इंडिया में ब्लॉक हो गया, राइट? हाँ, तो VPN डाल के वो खुलते खुश, ऐसा भाई अब क्या हैकर हो गए।
हाँ, हैकर का दिमाग है भाई। मैं वीपीएन डाल लिया, ये हब वो हब सब देख रहा हूँ, ये खुशी है, पैसे दे के देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वीपीएन का यूज़ वो नहीं है, बहुत सारे दूसरे अच्छे यूजेस है उसके। तो सुधर जाइए, अभी भी वक्त है, अभी भी क़यामत नहीं आई। तो लेकिन क़यामत बरहक़ है, क़यामत। हाँ, क्या बात है। Anyway, you can follow us on all these platforms written down And here. really And- would suggest you to follow us on YouTube because वहाँ पे लाइव बहुत अच्छा आता। Yeah. Chat word भी And हो। share it, and send us the topics you want us to discuss on. अरे YouTube पे भी कोई लिखे चैट में, इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा, बहुत दूर है हम लोग। बहुत दूर है। I think TV लेना कोई बड़ा। So anyway, so that's all for today. आपसे मिलके बहुत मुझे खुशी हुई है। So this thing. ये था ASMR आपके लिए खिजर भाई। So you can watch this show again on YouTube, Instagram, podcast में थोड़ा कट करेंगे क्योंकि we are gonna show visuals in video and podcast doesn't have videos. Or do send us in the topics you would like us to discuss on. और कुछ कहना चाहेंगे? बट खदीर भाई ऐसे वो पुराने हाँ, पुराने मूवी पुरानी हो गई भाई वो मूवी। हाँ, लेकिन और मैं आप मैं expect आपसे भी उम्मीद रखने वाला हूँ कि आप मुझे एक नया टॉपिक देंगे। तो ये था आप लोगों के लिए ASMR। और इसी के साथ हम असमर। आपसे असमर चलते हैं। खुदा हाफिज। सब बखैर। खुदा हाफिज।